السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی وہ اسٹیٹمنٹ جو اس نے یہ کہا کہ پنجاب میں پنجابی زبان کو بطور مضمون پڑھایا جائے گا۔ بہت اہم خبر ہے یہ۔ نہ صرف یہ خبر بہت اہم ہے بلکہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ذہن میں کیا ہے۔ پنجابی نیشنلزم کو ابھارنا ہے، راجہ رنجیت سنگھ کا پنجاب بنانا ہے، یا بھگت سنگھ کا پنجاب بنانا ہے، یا کچھ اور بنانا ہے۔ ایک چیز تو بہرحال میں کہہ سکتا ہوں کہ جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، ان کا جو کلاس کیریکٹر ہے، جو طبقاتی کردار ہے، وہ ان کو تو قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ پنجاب کو بھگت سنگھ کا پنجاب بنایا جائے۔ اس لیے کہ بھگت سنگھ نے تو انگریز سامراج کے خلاف جدوجہد کی تھی، پھانسی چڑھ گئے تھے۔ اس کی جدوجہد کا طریقہ کار درست تھا یا غلط تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج کے دنیا میں بھی جب دہشت گردی کے جو انفرادی واقعات ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ رجحانات تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی آزادی، اپنی بقا اور اس کے لیے جو جدوجہد ہے وہ چاہے دہشت گردی ہی کیوں نہ ہو، وہ جائز ہے۔ گو کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جدوجہد ہی مسائل کے حل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب بھگت سنگھ تو نہیں ہو سکتا۔ راجہ رنجیت سنگھ کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ بادشاہت اور توسیع پسندی اور جناب وہ جو ماضی کے اس طرح کے جو رجواڑے اور اس طرح کی جو ریاستیں بنتی تھیں، ان کا دور آج ختم ہو چکا ہے۔ اگر وہ بھگت سنگھ بھی نہیں بننا چاہتی اور راجہ رنجیت سنگھ بھی نہیں بننا چاہتی، تو آخر ان کے ذہن میں کون سی ایسی بات ہے جس نے اس کو یہ مجبور کیا کہ وہ کرے؟ دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے لاشعور میں یا ان کے سرکلز میں یہ ڈسکشن ہے کہ عمران خان نے پختون جو قوم ہے اس کو، پختونوں کی جو قوم پرستی ہے، اس کو دائیں بازو کی آمیزش دے کے تو سپورٹ کھینچ لی ہے۔ پختونوں کی سپورٹ پولیٹیکلی کھینچ لی ہے، اور اس میں شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لاہور میں رہتے ہوئے، بنی گالہ میں رہتے ہوئے عمران خان جو پختون نیشنلزم کا ٹچ دیتے ہیں، اس سے ایک سپورٹ ملی ہے ان کو، تو کیوں نہ مریم نواز صاحبہ بھی پنجاب میں کوئی اس طرح کی سوچ کو ڈیولپ کر کے کہ جی پنجابی لیڈرشپ کو اور پنجاب کی قیادت کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ لایا جائے، اور اس کو پنجابی نیشنلزم کی بنیاد پر سپورٹ حاصل کریں پولیٹیکل۔ اور یہ کوئی ان کے لیے پہلی دفعہ نہیں ہے۔ انہوں نے جب پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के ज़माने में तो ज़ियाउल हक साहब के वज़ीर आला मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जाग पंजाबी जाग, तेरे पग नूं लग गई दाग, तो ये एक स्लोगन था उनका इंतखाबी। और ये आर्जी फिनोमेना होते हैं, चाहे पख्तून नेशनलिज्म हो, चाहे पंजाबी नेशनलिज्म हो, या कोई और नेशनलिज्म हो। वो मतलब जो अगर उनकी आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं है और वाकई वो नेशन जो है वो किसी मुश्किल का शिकार नहीं है, उनके कौमी वजूद का सवाल नहीं है, कौमी उसके जो है वो मसाइल को हल नहीं किया जाता, तो बाकी जो है वो या तो अगर बड़ी कौम है तो शाउनिस्टिक अप्रोच रखती है, और शाउनिज़म की जो एक नेशनलिज्म की जो शक्ल है वो सामने आती है, और अगर वो जो है वो छोटी कौम है तो वो नैरो नेशनलिज्म का शिकार होती है। अब एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो मुमकिन हो सकती है और जिसके ज़्यादा इम्कानात हैं कि इन्होंने बड़ा कैलकुलेटेड ये मूव किया है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, शरीफ फैमिली और उसके साथ जुड़े हुए सारे जो पंजाब के कैपिटलिस्ट हैं, सरमाएदार हैं, वो बुनियादी तौर पे पंजाबी मेहनत कशों का, पंजाबी किसानों की नुमाइंदगी नहीं करते। वो पंजाब के सरमाएदार की नुमाइंदगी करते हैं। उनके हुकूमत की तमाम पॉलिसियाँ पंजाब के सरमाएदारों का जो है वो की जो नुमाइंदगी है उसमें वो नज़र आती है। अब पंजाबी सरमाएदार पाकिस्तान के मौजूदा जो स्ट्रक्चर है और पाकिस्तान को जो आलमी सतह पे मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को नज़र में रखते हुए ये समझ रहे हैं, इनको एहसास है कि जो करीबी ममालिक हैं उनके साथ जब तक तिजारती और मुआशी रवाबित नहीं होंगे तब तक पंजाब का जो कैपिटलिस्ट है, पंजाब का जो सरमाएदार है, वो compete नहीं कर सकता। तो वो शुरू से ही, जब से मियाँ नवाज शरीफ को सियासी ताकत मिली है वफाक में, तो शुरू से उनकी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के सरमाएदारों के साथ तिजारती और मुआशी रवाबित होने चाहिए। उससे पंजाब की जो जो सनतकार हैं, पंजाब के जो सरमाएदार हैं, पंजाब के जो ताजिर हैं, उनको फ़ायदा होगा। अब तिजारती नुक्ते निगाह से तो ये बात ठीक है, लेकिन तारीख़ी तौर पे हिंदुस्तान के साथ हमारी जो स्ट्रेटजिक जो रवाबित है, या जो इस्टेब्लिशमेंट के जो 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 की जो पॉलिसियाँ हैं, या जो इस्टेब्लिशमेंट का जो एक नुक्ता नज़र है, वो नुक्ता नज़र नहीं है जो नुक्ता नज़र पंजाब के जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है या पंजाब के सनतकार ताजर जिनकी नुमाइंदगी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उनके लिए वो है। तो ये नुक्ता जो है बहुत ही अहम है, और बहुत वक्तों तक ये नवाज शरीफ साहब और जो स्टेट के जो मुख्तलिफ अनासर हैं, लोग हैं, उनके दरमियान ये जो पॉलिसी के मुतालिक जो कन्फ्लिक्ट है, जो कशमकश है, वो जारी रहा। इस पूरे अरसे में नवाज शरीफ साहब इस मुश्किल का शिकार भी रहे हैं, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है और पॉलिटिकल जो जो फोर्सेस हैं पंजाब के अंदर नवाज शरीफ की क़यादत में, उनका इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ है। अब मैं नहीं समझता हूँ कि
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर ये चाहती हैं तो उसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे। क्यों कि आम तासर ये है कि जो है वो अब के बार जो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो असल में एक इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से आई है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से आई है तो इस्टेब्लिशमेंट की जो सोच है हिंदुस्तान के साथ कारोबारी और तजारती जो रवाबित बढ़ाने का, अभी उनकी सोच में कोई जो है वो तब्दीली नहीं आई है। जब जब तब्दीली नहीं आई है और ये इस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे अगर जो है ये जो है वो बच्चों में पंजाबी तालीम और पंजाबी नेशनलिज्म और पंजाबी जो है वो सकाफ़त और पंजाबी, तो इससे क्या होना है? इससे ये होना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हो, उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा और एक नए कन्फ्लिक्ट ने जन्म लेना है अगले दिनों में। और जो एक पाकिस्तानियत का या पाकिस्तानी कौम का जो एक जो स्टेट नैरेटिव है वो इसमें मुतासर होगा। लिहाजा ये टकराव सोचों में नागुज़ीर है, लेकिन बेहतर यही है, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम जो कौमें हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। पंजाबी को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, सराइकी को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, सिंधी को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, बलोच को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, पख्तून, गिलगिती, बिल्ती, कश्मीरी, सबको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। और ये रिकग्निशन ही दरअसल में मज़बूत पाकिस्तान और मज़बूत जो एक नेशन है, जो तमाम जो कौमियतों पर मुश्तमिल एक समझें कि आम अल्फाज में गुलदस्ता ही कह सकते हैं, वो इकट्ठे होके बन के तो एक मज़बूत पाकिस्तान बन सकता है। तो अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। आया ये सिर्फ एक बयान है? अगर बयान है ये सिर्फ, तो फिर तो नज़रअंदाज हो सकता है, लेकिन ये अगर वाकई एज ए पॉलिसी इसको अडॉप्ट किया जाता है तो टकराव नागुज़ीर है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई टकराव ना हो और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त मुआशी और सियासी, उसमें ये टकराव अफोर्ड नहीं किया जा सकता। हम ये समझते हैं कि तमाम कौमों को उनके जायज़ सकाफ़ती और आइनी और कौमी हुकूक मिलने चाहिए। यही पाकिस्तान की मजबूती का एक ज़रिया बन सकता है। आज के लिए इतना। अगले किसी व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।